ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور آج سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی مہینہ ذی الحجہ پر اختتام ہوتا ہے، آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، اور محرم سے پہلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو ہی تاریخ اور سن جو مشہور ہے، شمسی اور قمری۔ شمسی مہینے کا ابتدا جنوری سے اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے، اور یہ سن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ اس دور سے یہ سن عیسوی کا آغاز ہوا ہے۔ بہرحال اسلامی مہینے جو شروع ہی سے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ یہ مہینہ بھی اسی وقت سے مقرر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، گویا کہ یہ مہینوں کا جو نام ہے یہ مہینہ پہلے سے موجود تھے۔ البتہ یہ ہے کہ سن ہجری جو سن کا ہم ہجری کے ساتھ منسوب کرتے ہیں،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی طرف منسوب ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اسی سال سے سن کا ابتدا کیا گیا، لیکن مہینے جو ہے وہ پہلے سے مقرر تھے، اور ہجری سے پہلے عرب میں عام الفیل کا جو سن تھا وہ لوگ عام الفیل کے ساتھ سن منسوب کرتے تھے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا جو اصحاب فیل کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہاتھی والوں کا جو کعبہ کو ڈانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے، انہوں نے کنکریاں پھینکی، وہ لشکر ختم ہو گیا۔ تو ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، اس لیے عرب جو ہے وہ اس ہجرت سے پہلے، ہجری سن سے پہلے اپنی سن کو اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ عام الفیل یعنی فیل کا جو واقعہ ہوا اس سے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یا اس سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور اور پھر مدنی دور میں بھی سن یہی لکھا جاتا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے دور بھی اسی طرح گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور آئے تو انہوں نے ضرورت محسوس کی اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد جو اسلامی سن ہے اس کو ہجری کی طرف، ہجرت کی طرف منسوب کر کے ہجری نام اس کو دیا گیا۔ تو اسی وقت سے یہ رائج ہے، اور اسلامی جو احکامات، اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ سارے کے سارے اس اسلامی مہینے اور اسلامی سن کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان وہ اپنے اس تاریخ کو، اس سن کو بھلا چکے ہیں۔ 20ویں تاریخ جو دسمبر پر ختم ہو جاتی ہے اور جنوری سے شروع ہو جاتی ہے، اس پر جشن بھی منایا جاتا ہے، اس میں خوشی اور جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس سال کے استقبال کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے، اپنے حدود سے بھی پار کرتے ہیں، اور گانے وغیرہ کے محفلیں جماتے ہیں، نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نیا سال کا ہم استقبال کر لیں۔ لیکن ان شمسی جو مہینے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں ہے جس کے لیے اتنا خوشی کا اظہار کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ سال گزرنے پر افسوس کرنے کی بجائے خوشی منانا یہ عقل سے بہت دور ہے، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے تو 1 سال جب مکمل ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنے موت کے قریب ہو گیا۔ تو اب موت کے قریب جانے پر بھی کوئی خوشیاں مناتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ غیروں کی طرف سے ہم پر جو چیزیں مسلط کی گئی ہے، ہم نے بغیر دیکھے اور بغیر کسی تحقیق کے ان چیزوں کو اپنا لیا۔ اب مسلمانوں نے بھی غیروں کی طرح مغرب کی طرز پر انہوں نے سال گزرنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور وہی کچھ ہم مسلمان قوم کرتے ہیں جو غیر کرتے تھے، یعنی ان سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتا، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں رہتے ہیں، اور سن کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کون سا سن چل رہا ہے اسلامی، اور مہینہ کون سا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چند مخصوص جگہ ہیں، چند مخصوص ایام ہیں
वो उस अय्याम की वजह से हमें पता चलते हैं। मसलन रमजान उल मुबारक आता है तो हमें पता चलता है कि रमजान उल मुबारक का महीना है। इसी तरह ईद उल अजहा और ईद उल फितर और रबीउल अव्वल और मुहर्रम, ये चंद मखसूस वाक़यात जो इनमें हुए हैं उसकी वजह से ये चंद महीना हमें याद रहते हैं, बाकी पूरा महीनों का हमें पता नहीं चलता है। और हमारे नौजवान नस्ल जो मगरिब की फैशन पर और मगरिब की तरस पर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया और सब कुछ मगरिब से लिया और अपने तारीख सब कुछ भुला दिया है, ये बहुत अफसोस का मकाम है हमारे लिए। और न हमारे बड़ों ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपनी तारीख, अपने सन को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लामी जो महीना है और इस्लामी जो सन है, हर महीने में कोई न कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो हमें अपने दीन पर कुर्बानियां देने और अपने दीन पर अपने तवानियां खर्च करने और दीन को अपनाने के लिए उस वाक़े में हमारे लिए सबक मौजूद होता है। हर महीने में कोई ना कोई ऐसा वाक़या जरूर होता है। और फिर हमारे जो इस्लामी महीने हैं उनका इख्तिताम और उनका आगाज वो हमें उन कुर्बानियों को याद दिलाता है जो इन महीनों के इख्तिताम पर भी और आगाज पर भी है। हमें वो कुर्बानियां हमें सबक दे रहे हैं कि दीन पर किस तरह अपने आप को कुर्बान किया जाता है और दीन के लिए कैसे सख्तियां बर्दाश्त किए जाते हैं। मसलन हमारे यहाँ आखिरी महीना जुल्हज का महीना है, तो जुल्हज के 10वीं तारीख को हम कुर्बानी का अमल अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, हैवान जानवर लेकर ज़बह करते हैं। तो ये कुर्बानी है, इससे हमें सबक मिलता है कि आज हम कुर्बान एक जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते हैं, कल अगर जरूरत पड़े तो हम अपने आप को भी, अपने जान अल्लाह की दी हुई उस जान को भी उस पर कुर्बान करें। फिर उसके बाद जब ये कुर्बानी के अय्याम गुजर जाते हैं, उसके चंद दिनों के बाद 18 ज़ुल्हज्जा को दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। इस शहादत से हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के रसूल के इशारे पर अपने माल जान सब कुछ कुर्बान करना है। ये उसकी शहादत से हमें सबक मिलता है। फिर जरा आगे आ जाएंगे तो फिर 23 ज़ुल्हज्जे को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला होता है। यकीन मुहर्रम को उसकी शहादत है। गोया कि हमारे जो इस्लामी साल का इब्तिदा है वो शहादत से हो जाती है। उससे हमें सबक मिलता है कि हम पूरी साल इस वाक़े को अपने ज़हन में रखकर इसके लिए तैयार रहे। फिर उससे जरा आगे बढ़ेंगे, 10 दिन इस साल का नहीं गुजरा, नवासे रसूल की शहादत है, जिसने दीन के लिए कैसे कुर्बानी पेश की, वो सब के सब हमारे आंखों के सामने है और उन इस्लामी तारीख, उन वाक़यात को हमें याद दिलाते हैं। अगर हम इस्लामी तारीख को याद रखें तो ये वाक़यात खुद ब खुद हमारे ज़हन में आएंगे। हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ ने दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां पेश की। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, साल जब गुजर जाता है तो इंसान को अपने एहतिसाब करने की जरूरत होती है कि ये साल पूरा मैंने गुजार दिया है और मेरा 1 साल मेरे उम्र से कम हुआ, मैं 1 साल अपने मौत के करीब हुआ हूं, अपने रब से मुलाकात के करीब हुआ हूं। तो मैंने रब से मुलाकात के लिए इस साल में मैंने क्या क्या किया है, उसके लिए हर इंसान अपने एहतिसाब करे कि ये साल मैंने किस तरह गुजारा है। इस साल में मैंने कितने नेकियां की और कितने मैंने अल्लाह की नाफरमानियां की। फिर साल का आगाज होता है, उसके लिए तैयारी यह है कि हम इस साल एक आज़म, एक मुसम्मम इरादा करें कि ये जो आने वाले साल है मैं इसमें जितना हो सके मैं नेकियां करूंगा, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। ये एक इरादा करना चाहिए। ये हमें साल के इब्तिदा और इख्तिताम पर ये सबक हमें मिलता है।
बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे मैंने आरज किया है कि हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दीन मुकम्मल है। क़यामत तक ये इसी तरह रहेगा और न इससे किसी चीज की कमी होगी और न कोई चीज इसमें दाखिल किया जाएगा, यानी न निकाला जाएगा न दाखिल किया जाएगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, बस ये मुकम्मल है। अब कुरान और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के तर्ज अमल से जो बात हम तक पहुंची है वो दीन है, उस दीन पर हमें अमल करना है। अगर उसके अलावा कोई राह हम मुतअय्यन करते हैं वो दीन नहीं है, वो खराफात। आजकल मुसलमान खराफात में खोया हुआ है, दीन का असल नक्शा मिट चुका है। हमारी मुसलमानी का पता यहां चल जाता है कि हम कुछ खराफात को लेकर उनको अपने दीन का हिस्सा बनाकर उनको हमने समझ लिया बस यही कुछ दीन है। आप अंदाजा करें कि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आता है तो हम रमजान के इब्तिदाई चंद दिनों में बेहतरीन नमाजी बन जाते हैं, तिलावत भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, नफलें पढ़ते हैं और सदका खैरात भी करते हैं। ये चंद दिन होता है। उसके बाद फिर हम दोबारा उसी हालात पर लौट आते हैं जिस तरह पूरा साल हमने गुजारा। फिर उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम 10-12 दिनों के लिए सच्चे आशिक रसूल बन जाते हैं, सच्चे आशिक रसूल, कि हम जैसा कोई आशिक रसूल नहीं है। वो चंद दिन गुजरने के बाद फिर वही दोबारा हालात पर लौट आते हैं और सुन्नतों पर बुलडोज कराना शुरू करते हैं। हम सोचते नहीं है कि इससे हमारा आका कितना नाराज होगा। फिर जरा आगे बड़े मुहर्रम का महीना आता है तो 10-12 दिनों के लिए हम पक्का हुसैनी बन जाते हैं कि हम हुसैन के लिए बहुत कुछ करते हैं और वाह करते हैं, आह करते हैं, लेकिन हुसैन का जो किरदार और जो सीरत था वो हमने कहा है। यह भी चंद दिन होता है कि हम आह वाह करते हैं, हुसैनी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा साल हम यजीदी हुए और इस पर हम खुश भी हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुहर्रम का जो महीना है हमें शहादतों का दर्स देता है, कुर्बानियों का दर्स देता है कि अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करें। बहरहाल ये मौजूद अपनी जगह पर आएंगे। शहादत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी बात होगी और आगे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और किरदार पर भी बात होगी कि उसका सीरत कैसे था, उसने दीन पर किस तरह अमल किया है। असल ये चीजें हैं कि हम उनको अपनाएं। सबक हमें यह मिलता है उनकी शहादतों से, नहीं है कि हम उनका सीरत बयान करें, आ करे वाह करे चले जाए, बस खत्म हो जाएगी। बहरहाल आज जो मैं बात करने जा रहा हूं कि मुहर्रम के महीने में जो हम बिदअत और खराफात करते हैं, क्या दीन में उनका कुछ हिस्सा है या हम अपने ज़हनों से बनाए हुए। मुहर्रम का महीना आता है तो एक फिरके की तरफ से इतना वहीला शोर मचाया जाता है कि हमारे अच्छे अकीदे वाले मुसलमान भी उनके जो अकीदा है उसमें गुल मिल जाते हैं, हालांकि कुरान और सुन्नत के मुकम्मल खिलाफ है उनका अकीदा। तो चंद चीजों का मैं तज़किरा करना चाहता हूं। मुहर्रम का महीना आता है तो हम ये समझते हैं ये गम का महीना है, हम इसको गम का महीना तस्वीर करते हैं। यहां तक कि मुहर्रम के महीने में हम शादियां भी नहीं करते हैं, हालांकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुहर्रम के महीने में शादियां की है, निकाह किए, और आपके सहाबा ने मुहर्रम के महीने में निकाह की। खुद हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहर्रम के महीने में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुई है, लेकिन हम निकाह नहीं करते। क्यों? हम कहते ये गम का महीना है। अरे खुदा के बंदे, मुसलमान शहादत पर गम नहीं करता है,
शहादत को अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत दी है। जो शहीद होते हैं उनके लिए अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह मौत, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं उनको तुम मुर्दा न कहो बल अहयान, बल्कि जिंदा है। तो जिंदों पर कैसे मातम कैसे गम, ये गम का महीना नहीं है, ये बात याद रखो। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हम शहादतों पर फख्र करते हैं, हमारा फख्र है कि हम हुसैनी हैं और हुसैन ने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी, अपना सर कटाया है, हमें फख्र है, हम क्यों गम करें। और दूसरी बात यह है, मुहर्रम में हम इसको गम का महीने समझते और फिर काले कपड़े भी पहन लेते हैं। अल्लाह के बंदे, ये क्या तूने दीन बनाया है, ये काले कपड़े आपने कहां से लाया है। वैसे भी मुहर्रम के महीने के अलावा भी काले कपड़े को नापसंद किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप हदीस में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने ख्वाब में वरक़ा बिन नौफल को देखा है, जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वो चचाजाद या बिजाद भाई थे या चचा थे, जो सबसे पहले वही के बाद आप सल्लम को लेकर उसके पास गए थे और आपने बशारत दी थी कि आपको नबूवत मिलने वाली है, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी हिमायत करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने वरक़ा को देखा, वो सफेद लिबास में था और इससे मालूम होता है कि वो जन्नत में है। अगर उसके जिस्म पर काले लिबास होते तो ये जहन्नम में होता, ये जहन्नमी की निशानी है। ये बिल्कुल हदीस है बुखारी शरीफ, यानी जहन्नम के अंदर उनको काला लिबास बनाया जाएगा। तो ये काला लिबास नापसंद चीज है। मुसलमानों का पसंदीदा लिबास सफेद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाया है। और जन्नत में जन्नतियों के लिबास पर सफेद लिबास होंगे। तो वैसे दिनों में ये नापसंद है, लेकिन हम इस महीने में जो गैरों में हमारे अंदर एक चीज डाली हुई है अकीदत में, हम उसके मुताबिक काले कपड़े पहनते। खुदा रहा खुद भी इससे बचे, अपने बच्चों को बचे। बच्चों को देखे छोटे छोटे बच्चों को काला लिबास पहनाए हुए। अरे यार काले लिबास से अपने आप को हटाओ यार, जब लिबास काला है तो इसका दिल खुद ब खुद काला होगा। फिर यह फरमाबरदार कहां बनेगा, ये तो आपके नाफरमान दिल का काला हो गया। सफेद लिबास पहनाओ, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात दिलाओ। और फिर मुहर्रम के महीने में करने का चीज यह है कि मुहर्रम के 9-10 आशूरा को रोजा रखने का हुक्म है। पहले ये फर्ज के बाद ये फर्जियत इनकी मंसूख हो गई तो ये मुस्तहब के दर्जे में है, लेकिन सवाब का काम यह है कि 9-10 मुहर्रम को रोजा रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा। फिर जब यहूदियों को देखा कि वो रोजा रखते हैं तो पूछे कि ये क्यों रखते, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की निजात ही इसलिए रखते। तो कहा हम ज्यादा हकदार है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब है, हम रोजा रखें। लेकिन ये कि यहूदियों के साथ मुतशाबहत हम इख्तियार नहीं करेंगे, यहूदियों के मुशाबह हम इबादत में भी नहीं करेंगे, लिहाजा हम 9-10 या 10-11 2 दिन रोजा रखेंगे। तो ये रोजा रखने का हुक्म है। हम क्या करते हैं 9-10 को रोजा तो दरकिनार, हम तो खुद खाने पीने के वो चीजें करते हैं। अलबत्ता ये कि हदीस में ये भी आता है कि 10 मुहर्रम के दिन कोई अच्छा खाना पकाना अपने घर वालों के लिए, अपने अहल के लिए, ये इतनी सी बात हदीस से साबित है कि 10 मुहर्रम के दिन कोई अच्छी सी खाना पकाया जाए, अच्छी सी डिश हो जाए। लेकिन रोजे के साथ ये नहीं है कि रोजा न रखे, रोजा रखे। और फिर जब हम बात करते हैं मुहर्रम के खराफात की, तो यहां हमारे गैर लोग हैं, जो अगैर अकीदा वाले, गलत अकीदे वाले लोग हैं, उन्होंने इतना आम किया कि मुसलमान में भी इसमें सबील लगाते हैं, पानी की शरबत ये भी लगाना ये जायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। भाई आपको लगाना है, लोगों को पानी पिलाना है तो किसी और दिन, ये सिर्फ इस 10 दिन के साथ क्यों खास है। तो भाई हजरत हुसैन तो प्यास से शहीद कर दिए गए, आपको यहां से गता शरबत पी रहा है तो ये कौन सा हुसैनी होने का सबूत है। भाई अगर आप उसके सीरत किरदार को अपनाना है तो कम से कम 9-10 को रोजा रखते हो, उसका तो नकल तो उतारे कि करबला के मैदान में 9-10 को शहीद हुए और 3 दिन वो भूखे रहे, प्यासे रहे, तो कम से कम आप उनका तो नकल उतारे, पता चल जाएगा। आप रोजा रखें 9-10 को और बाहर जरा घूम के आ जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि हुसैन ने कैसे अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी है, और फिर आपको पता चल जाएगा कैसे दीन के लिए प्यासे और भूखे रहे हैं।
جب آپ یہاں سے کھاتے پیتے ہو اس کے نام پر یہ سارے خرافات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس کیسے ہوگا؟ اس لیے تو ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، اس لیے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ حضرت حسین نے دین کے لیے کیسے قربانی پیش کی۔ تو یہ خرافات نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور خاص کر مسلمان جو ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہو۔ اگر آپ اس سلسلے کو بات لمبی کریں گے بہت طویل ہو جائے گا، ہمارے جمعے کا مختصر نشست ہے، لیکن ضروری باتیں ہم آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی بات کیا جائے تو حضرت حسین کے شہید ہونے کے بعد جو اہل بیت تھے، جو اس کے بعد امامت کے حقدار ہوئے، امام بنے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ خرافات کیے ہیں۔ اگر آپ ان کے تاریخ کا مطالعہ میں انہوں نے بھی اس طرح نہیں کیے۔ جو اس کے بعد جو اس کا بیٹا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صدیق اور امام تقی علی نقی علی، یہ سارے ائمہ جو ائمہ اطہار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد سے، انہوں نے کیا اس طرح خرافات کیے دین میں؟ اب ان کے تاریخ سے تو پڑھو، کچھ تو سوچو، عقل تو کرو۔ یہ ہم نے سارے خرافات دین میں داخل کے، یہ دین نہیں ہے، یہ ثواب مواب نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔